Good morning all of you. Today I am going to introduce interrogative sentence to voice. If you know certain rules, you can transform easily from active voice to passive voice. We are ready to change from active voice to passive voice. But if you know some important rules, how to change, you can easily transform. At first, we should understand what is interrogative sentence. For definition, we should learn the sentence in which questions are asked. Such type of sentence is called an interrogative sentence. वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर 1, हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को यदि पहले प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। आइए देखते हैं इसको चेंज करने का रूल। नंबर 1, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। This is in simple present tense and this is in interrogative sentence. If you see do or does, just you have to understand the sentence is in interrogative sentence. जैसे ही आप do और does को देखते हैं समझ जाएंगे कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अथवा एक और टिप्स देते हैं आपको कि कौन सा सेंटेंस है उसको समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन मार्क देख के ही आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लियर कर सकते। यदि कोई 4 सेंटेंस आपको दिया गया तो यदि आपने क्वेश्चन मार्क देखा समझ लेंगे दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इसको चेंज करते हैं। डू और डज तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम लोग रूपांतरित करने के लिए लगाएंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 plus by plus object and question mark. This is in passive voice. If you want to change from active to passive, but you have to apply do does subject V1 plus object and is or am subject V3 by plus object. Let us learn one two examples. It will be better understanding. Do you help me? This is the sentence in example. Just we have stated that object becomes subject. जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। मी के बदले यहाँ क्या लिखते हैं? आई लिखेंगे तो इसके पहले आपको एम लेना होगा। सपोर्ट के लिए तीनों में से कोई एम आई हेल्प बाय यू। दिस इज द राइट आंसर। देखेंगे यू जो ट्रांसफॉर्म होगा नॉमिनेटिव केस, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी यू सेम होता है। वन मोर एग्जाम्पल, does she follow us? देखेंगे यहाँ सबसे पहले कि this sentence is an interrogative sentence and the object becomes the subject. तो us आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमें R लेना पड़ेगा। Are we followed by she का है ट्रांसफॉर्म होता है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट जो है कोई भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। वन मोर एग्जाम्पल, बिकॉज वी हैव लर्न आर एम वी आर यूजिंग इज, देयरफॉर एग्जाम्पल नंबर 3, डू दे हेल्प हर। देखेंगे सबसे पहले क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। यदि 10 पीस दे दिया गया सबसे पहले आपको सेंटेंस को चयन करना होगा कि सेंटेंस कौन सा है। देखते ही पता चला कि डू डज से कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें से हर जगह है तो हमारा इज आ रहा है। इज सी हेल्प बाय डू का दे का क्या हो जाता है? वेरी गुड आंसर। And in this way, we can learn easily how to transform from active to passive voice. Wait and watch for next video. Thank you. Good morning, all of you. Now I am going to introduce interrogative sentence. How to change from active to passive for past tense, so that you can transform easily from active to passive. This is for past tense. Did plus subject plus V1 plus object.
This is an interrogative sentence and we can give them simple past tense of interrogative sentence. Now we can transform it easily in passive voice. If you find did, just you have to understand the sentence is in past indefinite tense. So simple past tense. For it we have to apply was and where. Was, where, plus subject, plus referee, plus by, plus object. This is the process to change into passive voice. Now it will be better to take one or two examples. देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग देखने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले यदि ये आपके प्रश्न में आए हैं और डीड से वाइक शुरू हो रहा है, तब सीधे समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और उसको तोड़ने के लिए यानी चेंज करने के लिए हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं. आइए देखते हैं. डीड ही डिस्कवर इंडिया इन 1498. कितना अच्छा सेंटेंस है, देख लेते हैं. सेंटेंस को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है. डीड से शुरू हो रहा है और एक साइन जो कि क्वेश्चन मार्क है उससे एंड हो रहा है, तो हम समझ गए हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है. नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म. वाज और वेयर में हमें तोड़ना है, तो हम लेते हैं इंडिया को, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम वाज लेंगे. वाज इंडिया डिस्कवर्ड, थर्ड फॉर्म आपको हमेशा लगाना है. डिस्कवर्ड बाय हिम. दिस इज द प्रोसेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. इट विल बी बेटर. हिम, वी हैव टू एड दिस वन. इन 1498. You can write here also. Discovered by him in, okay. You can add here or here. It is right. Next one. एक लेते हैं वास है तो हम लोग वर्ड का ले लेते हैं ताकि हम लोग को अंडरस्टैंडिंग में अच्छा हो. तो डीड से ही शुरू हो रहा है. वाई डिड यू हेल्प द पुअर. प्लीज नोटिस हियर डिड और द पुअर हमेशा प्लूरल में होता है क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव ऑलवेज प्लूरल. कोई भी एडजेक्टिव जो 10 स्टार्टिंग के साथ है लगा हुआ है तो हमेशा प्लूरल में, इसलिए यहाँ पर लोग वेयर बाहर कर लेंगे. क्या हम लोग कर लें? वेयर द पुअर. थर्ड फॉर्म हेल्प बाय यू का यू. नाउ अप्लाई क्वेश्चन मार्क. This is the right answer, and in this way we can give many examples, we can take many examples, and for better understanding we must participate in practice sets and practice session. In the next video we will watch how to transform, how to participate, and how to give change from active to passive quickly. Thank you. Wait and watch.